हमारी बेटियां क्यों डरेंगी? हमारी बहनें क्यों डरेंगी आगे बढ़ने से? कोई नहीं आपका रास्ता रोक सकता है, बिल्कुल भी कोई नहीं रास्ता रोक सकता है। ना समझो बेटी को एक काली रात, ना समझो बेटी को एक काली रात। वो तो वो दिया है जो खुद को जला के पूरे संसार को रोशन कर देती है, पूरे संसार को रोशन कर देती है। उसका जर्रा जर्रा पिघल गया, कोई फिक्र आखिर क्यों करे? कोई मरता है तो मरने दो, सिर्फ हम ही आगे क्यों बढ़े? खूबसूरती अगर छीन भी ली, मेरे सपने कैसे दफनाएगा? सुल्ताना, रजिया सुल्ताना नाम सुना होगा। तो औरत जो है बेसिकली जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गई। हर बार एक ही आवाज सुनाई देती है, हर बार एक ही आवाज सुनाई देती है कि ऊपर वाला तुझे एक लड़के की दाद दे, कि ऊपर वाला तुझे एक लड़के की दाद दे। कोई ये क्यों नहीं कहता कि ऊपर वाला बस तुझे एक अच्छी औलाद दे, ऊपर वाला बस तुझे एक अच्छी औलाद दे। खूबसूरती अगर छीन भी ली, मेरे सपने कैसे दफनाएगा? बता, तेजा फेंका है चेहरे पे तूने, मेरे हौसले कैसे जलाएगा? ना समझो बेटी को एक काली रात, ना समझो बेटी को एक काली रात। वो तो वो दिया है जो खुद को जला के पूरे संसार को रोशन कर देती है, पूरे संसार को रोशन कर देती है। काश काश जब एक पापी ने एक महिला को इस अम्ल से खंडित करने का प्रथम प्रयास किया था, तो उसी क्षण दंड स्वरूप उस पापी के शरीर के एक एक अंग को इसी अम्ल से झुलसाया गया होता, ताकि परिणाम स्वरूप लोगों क्या आने वाले युगों युगों तक करने का साहस न करता। I can say from the bottom of my heart is that I already said earlier that I can feel the vibrations of this place and all of you present here, and you people are fantastic. You are giving all the positive vibrations, and it's all everybody should applaud for you. I'm telling about myself because, to be very true, jumping out of an aircraft is very easy, but speaking at this stage and talking about the issues which women are facing is very difficult. We are saying that we are celebrating Women's Day, but to be true, what we are talking today on this podium, that is what we should be talking about. That is what the society needs today. So my compliments to all the organizers for giving us also an opportunity to witness such incredible speakers, and also giving us a food for thought that what more we can contribute to the society. All of you, I welcome all of you. I'm Dr. Humaira Noor from Government Medical College, Baramulla. I'm working as head of the department. Today we are here to celebrate International Women's Day. This should be something that should be inculcated into our day-to-day lives, that every day should be a Women's Day. And it starts in our families. It starts at the base root level, wherein we have to inculcate the habit that the gender equality is to be inculcated there. There should not be a difference between a boy and a girl. See, when I'm a gynecologist, so the things that I encounter on daily basis, because I'll share my part. So once deliveries are there, and it's so traumatizing, and it hurts you a lot when you see females. When a female is born, and then the scenario there, particularly when a third female or a fourth female is born, it's like, it's a crime at that time on the part of that young baby who was born. Nobody is ready to take that baby, and we have seen such cases wherein the patients have suffered heart attacks because they. Sister, she goes to kitchen, she starts cooking in the morning, she cleans utensils, she prepares food, she prepares lunch box for her brother also. But brother, what is he doing? He is just taking bath and he is just standing in front of mirror. Isn't? So the learning has to start from the family. The mother has to make her son realize that, okay, beta, you have to go to kitchen, you have to make omelette, you have to clean your utensils yourself, you have to iron your clothes. So cleanliness has to start, this drive has to start from your home. Unless your home is not clean, you will not be able to clean the society.
कश्मीर की जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम। सलाम उस हौसले को, सलाम उस जुनून को, सलाम कश्मीर की हर मां को जिसने आज तक, गर्चे गुज़श्ता दौर में हमने देखे कि हालात काफ़ी कशीदा रहे, ऐसे हालात में हौसला रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हिम्मत नहीं हारना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में एक कन्फ्यूजन होता है। अपने बच्चों को सुधारना, सही रास्ते पर लगाना, ये एक मां ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, देखिए अक्सर हम इस सोसाइटी में, ये मर्दों की सोसाइटी, मुझे कहने में कोई हर्ष नहीं है, मुझे कहने में कोई हर्ष नहीं है, लेकिन दुनिया में हम एग्जाम्पल्स देते हैं तुर्रम खान की, दुनिया में हम एग्जाम्पल्स देते हैं सिकंदर आजम की, लेकिन अगर देखा जाए दुनिया में उनको लाने वाली एक मां है, एक मां है। तो आज इस मौके पर आई वॉज इन्वाइटेड, साउथ कश्मीर में मेरा इनविटेशन था, लेकिन आई प्रेफर्ड कि दिस इज माय ओन डिस्ट्रिक्ट। देखिए, दुनिया को स्ट्रीमलाइन करना, एक औरत से बढ़कर सिस्टम कोई नहीं सुधार सकता इस दुनिया में, एक औरत से बढ़कर। एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, आप देखें कितनी एग्जाम्पल्स हैं। हमारी बेटियां क्यों डरेंगी, हमारी बहनें क्यों डरेंगी आगे बढ़ने से? कोई नहीं आपका रास्ता रोक सकता है, बिल्कुल भी कोई नहीं रास्ता रोक सकता है। हिम्मत आपको करनी है, हिम्मत आपको करनी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ख्वातीन को देखिए, विक्टोरिया को देखिए, एलिजाबेथ को देखिए, यूनेस्को की चीफ को देखिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की सरबराह खातून, इंदिरा गांधी खातून, झांसी की रानी खातून। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इससे बड़ी एग्जाम्पल एक वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या सो हो सकती है? फॉर दैट मैटर आप देखिए कि सबसे पहली मुस्लिम हुक्मरान जिसने दिल्ली पे हुकूमत की, सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, नाम सुना होगा। तो औरत जो है बेसिकली, जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गई। तो बहकना आपको नहीं है। यहां पे हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, या जो भी मुझे सुन रही है कश्मीर क्राउन के जरिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, सबसे पहले आज मैं सलाम करता हूं उन बेटियों को जिन्होंने घरेलू तशद्दुद सह के अपनी जानें दी। मुझे नीलोफर याद है साउथ कश्मीर की, मैं भूला नहीं हूं रोजी जान पांपोर की, मैं भूला नहीं उस हामला खातून जो सोपोर में घरेलू तशद्दुद की शिकार हुई। मैं हमेशा, आप याद रखें, जब भी मुझे कश्मीर के किसी गोशे से कॉल आता है, दूसरे जर्नलिस्ट के अलावा, आई प्रेफर टू डू स्टोरीज ऑन दीज वीमेन which are being forced to these violations and domestic violence. We have to stop it. We have to stop it. हमें आवाज़ें उठानी है। देखिए, हर एक कौम में जब तक ना कोई आपको अच्छाई और सच्चाई की बात करे, पिछले 70 साल में हमने ऐसे अनवांटेड इश्यूज की तरफ ध्यान दिया कि हम असली इश्यूज जो हमारी कौम के हैं वो भूल गए हैं। ट्रस्ट मी, वो हम भूल गए हैं। हमें असली इश्यूज, इशू बेस्ड, चाहे पॉलिटिक्स हो, इशू बेस्ड चाहे मीडिया हो, इशू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां पे इश्यूज को एड्रेस किया जाए। और सबसे, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच टाइम बिकॉज सो मेनी स्पीकर्स आर हियर, I am thankful to the organizers, particularly I know Mahwish has invited me here when I see Dr. Sehri जो Deputy Commissioner बारामूला है, when I see कि किस तरह से वो अवाम की खिदमत कर रही हैं। मैं ज़िंदगी के उस दौर से गुजरा हूँ
रोते हुए खुद को खुद ही चुप कराया है। ललेश्वरी, ललदयक, ललमा कश्मीर की ही नहीं सारे विश्व की सब एक बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हस्ती रही है। उनका कहना है, जैसे आप भारत की सभ्यता में दोहा कहेंगे, आमी पान सदरस नायुचुस लमा कति बोझ दायम्यून मिति दीतार आयमेन टाइकेन पूंजन शमा जूचुम ब्रह्मा गरगसा। और हमारे काउंसलर आशिक साहब और हमारे काफ़ी काउंसलर्स हैं, तो फायर ब्रांड काउंसलर एक ही काउंसलर को नाम पड़ा है, वो यहाँ पे निकट जी, जिसे फायर ब्रांड काउंसलर कहा जाता है, म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के। और GM शफी साहब मेरे भाई, पॉलिटिकली हम बड़ा लड़ते रहते हैं, बट खैर भाई हैं बड़े। और आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको मेरा एक और बार सलाम आदाब। जैसा कि मैंने कहा कि मैं सोच रहा था मैं आज शेर व शायर से स्टार्ट करूँ, जो भूल गया। अब मैं सोच रहा था मैं कैसे शुरू करूँ। मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में अब हर किसी को मॉर्निंग असेंबली में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था। अब मेरी जो फॉर्म टीचर है उसने बोला कि ये लड़का जो पीछे बैठता है क्लास में उससे बुलवाना चाहिए। तो मेरा नाम लिखा, मैं परेशान हूँ, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे बड़ा स्टेज से बड़ा डर लगता था। जो बड़ा स्टेज फोबिया आज भी है, हालांकि मैं काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ, लेकिन पहला 1-2 मिनट में बड़ा नर्वस होता हूँ। तो मेरी माँ जो है, मैंने शाम को उसको कहा, मैंने कहा कल मुझे कुछ स्पीच देनी है, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ पता नहीं। पहले तो ये है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं भूल जाता। तो उसने मुझे कहा, हालांकि मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं। तो मैं बैठा, शाम को खाना वाना खाया, तो मैंने ऊपर बोला, तो कुछ हाथ में दिया, बोला शुरू करो बोलना, मैं सुनूंगी। तो मैंने शुरू किया बोलना, वो सुन रही थी। तो पहला जो लेसन है, अगर मैं आज स्टेज पे हूँ, आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से बोल सकते हो, कोई बात नहीं। और उसको ये भी नहीं पता बेचारे को मैं बोल क्या रहा था उस टाइम, बट उसने बड़ा एनकरेज किया और मुझे जैसे कि जब मैंने अंदर भी थोड़ा सा स्पीच दी थी, तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि इन प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़ीरो है। अगर ये इनिशिएटिव जिनने लिया है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, अच्छी बात है। बिकॉज कहते हैं ना, बूंद बूंद से दरिया बनता है। तो जब हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे तो इसी से चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं ना, आग्रह होते हैं चीज़ों के बारे में। बट बात ये है कि एक दिन औरत की इज़्ज़त मत कीजिए, हर दिन औरत की इज़्ज़त कीजिए। आप सब अपने घरों से शुरू कीजिए, अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की, अपनी माँ की इज़्ज़त कीजिए। आजकल बच्चे देखिए कैसे माँ को भी पीटते हैं, बाप को भी पीटते हैं, और कितना डोमेस्टिक वायलेंस हमारे कश्मीर में हो रहा है, हद से ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, चाहे आप सिख कम्युनिटी की बात करो, चाहे आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करो, हिंदू की बात करो, जो भी कश्मीर में है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा है, और अगर ब्लैकमेलिंग के केसेस में यंग जनरेशन में बताऊँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जैसे आजकल देखते हैं कि घर में 4 लोग हैं, चारों के पास सेलफोन पड़े हुए हैं, एवरीबडी इज़ बिजी एट देयर ओन। अगर एक बहन का मूड ख़राब है, दूसरी बहन को स्टेटस से पता चलता है कि मेरी बहन का मूड ख़राब है, वो किसी परेशानी में है। आप बात कीजिए खुल के। आप ठीक है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, करें, बट दिन में अपने बच्चे को जाके पूछिए, कि बेटी को जाके पूछिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। बी फ्रेंड्स विद योर डॉटर्स, बी फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड, सो दैट वो खुल के आके आप सब कुछ शेयर करें। और घर में जैसे बेटा बेटी होते हैं, हमेशा अंतर किया जाता है कि बेटे को ज़्यादा चीज़ दी जाती है, बेटी को कम दी जाती है। ऐसा मत कीजिए। घर से ही हर चीज़ की, कहते हैं स्कूल बाद में बच्चा जाता है, पहले घर से इल्म मिलता है इंसान को। तो घर पे रहिए और घर
घर में बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, बेटों को सिखाइए कि हाँ ये तुम्हारी बहन है, इसकी इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करना सिखाया जाए। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गलत हम देखते हैं रोड पे, चाहे मैं देखूँ चाहे कोई भी देखे, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, जैसे स्कूटी लड़की चलाए, मोस्टली आप देखिए नॉर्मल केस है, या गाड़ी चलाए तो बहुत ज़्यादा हॉर्न और लड़के ईव टीज करते हैं, उसको छेड़ते हैं कि अच्छा। इन्हीं छोटी चीज़ों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं, बाद में वो एसिड अटैक, बाद में वो रेप केसेस, बाद में वो मर्डर, ये सब कुछ बन के सामने आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू, और मैं आप सबका, मीडिया का भी शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँच सकती। समाज में यही जिम्मेदारी है कि लॉज तो, कानून तो देखिए, मैं खुद वकील हूँ, कानून तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखा जाए कानून के लिए भी जब कोर्ट में जाओ तो कहीं साल लग जाते हैं आपको। कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, पड़े हुए हैं, कई साल आपको तारीख पे, कहते हैं ना जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है तारीख पे तारीख, ये सच है, कई साल लग जाते हैं आपको इंसाफ पाने में। तो ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, या तो एक हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4 वुमेन की बॉडीज़ बनानी चाहिए, फीमेल की बॉडी बनानी चाहिए, जो खुद अपने एमिकेबली उन मसलों को सेटल कर सके, क्योंकि हम सब जब जुट हो जाएंगे तभी इन सब चीज़ों के खिलाफ हम एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कोर्ट जाना, हर किसी के पास पैसे नहीं है, हर कोई लॉयर की फीस नहीं दे सकता है, तो वो कहाँ जाएगा जस्टिस मांगने, वो लड़की कहाँ जाएगी। और हर कोई खुल के सामने आके नहीं सोसाइटी में बता सकता है कि मैं तकलीफ में, मेरा पति मुझे मारता है, या कोई लड़की बोल सकती है कोई लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये कहाँ से निकलेंगी ये चीज़ें, कोई नहीं बोल पाता। तो आस पड़ोस में जब आप देखते हैं किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है या कोई किसी को पीट रहा है, तो उस चीज़ की तरफ भी ध्यान दीजिए, उस चीज़ को भी सुनिए कि अच्छा आस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। आप जब शुरू करेंगे ना तो तभी ये सोसाइटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Okay, actually I am vice president of this council, all over international council, और ये जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल है, वी आर ऑलरेडी बीन वर्किंग फॉर मेनी स्टेट्स, हम बहुत सारी स्टेट्स में काम कर चुके हैं, बट फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि हम JNK में आएँ और हमने ये इवेंट किया कि ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को देखें, इश्यूज़ क्या है यहाँ। मैं खुद JNK से हूँ और मैं रिसर्च कर रही थी कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और 5 मुद्दों पे हम, और 5 प्रॉब्लम्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। एक तो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहला सेंटर हम बारामूला से स्टार्ट करने वाले हैं, और मेंटल हेल्थ पे भी हम एक ब्रेन जिम हेल्थ सेंटर कर रहे हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक डिप्रेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपकी ऐप, जो सर ने भी अंदर बोला, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, कि हम एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा स्पेस एजुकेशन में खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे काम करती हूँ डेंटिस्ट्री में, और मैं जल्दी अपना भी रोबोटिक सर्जन जो है, हमारा इंडिया की मैं पहली डेंटिस्ट हूँ जो इस पे काम कर रही है। तो मेरा सोशल सेक्टर में इसलिए इंटरेस्ट आया है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे JNK में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे आइडियाज़ मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जैसे डिप्रेशन है और बाकी मामला। जी, क्या लगता है आपको बुनियादी लेवल पे क्या लेक हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हो गया हमारा, हम लोग क्या है कि हमारा एक प्रॉब्लम है, अगर कोई कुछ करना चाहता है हम उसको मोटिवेट नहीं करते हैं। वी शुड एम्पावर ईच अदर, हम एक दूसरे को अपने आइडियाज़ को एक जगह एक साथ बैठ के एम्पावर करना चाहिए। अगर कोई आइडिया है, किसी का सोर्स है, तो उस मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि जब तक हम मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, हम कहाँ, मतलब हमारा कोई भी सोल्यूशन हाथ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने हर गेस्ट को यहाँ बुलाया था, हर तरह की सेक्टर के लोगों को बुलाया था, ताकि हर कोई अपना आइडिया और व्यू शेयर करे और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अगर यूँ देखा जाए, पहला स्कूल माना जाता है बच्चे का घर, जी, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से वालिदैन के लिए कि डेफिनेटली रोल रहता है उनके बच्चों पे, ताकि फ्यूचर में ऐसे मामला ना देखें? जी, डेफिनेटली मैं इस बारे में बहुत डीपली बोलती, बट वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। मेरी बुक आने वाली है जल्दी, अनटोल्ड साइड ऑफ द प्रोफेशन, जिसमें मैं ये लिख रही हूँ कि जो होम होता है, जो पेरेंटेज होती है, जो पेरेंटिंग होती है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जैसे एक सीड होता है, जब एक बीज होता है, उसको बोने के लिए, तब जब वो बीज पूरा होगा, अच्छा होगा, उसको अच्छी तरह से हम मतलब उसका पूरा सोल्यूशन अच्छे से होगा, तो वो एक पेड़ अच्छा बन सकता है। जब आपका मतलब बेस ही, फाउंडेशन, जो आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी, तो यू कांट रीच अप टू द लेवल। सो आई थिंक पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों से अच्छे से बात करें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स, क्योंकि जो गैप आ रहा है, जो हमारा ये 90s 80s वाला गैप है, और आज की जो टेक्नोलॉजिकल दौर में, वो पेरेंट्स बच्चों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे और बच्चे पेरेंट्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। तो उस
उस चीज़ पे हमें बहुत मतलब बात करनी है। और उसके लिए भी मैंने सोल्यूशंस लाए हैं। जैसा मैंने आपको बोला, डिप्रेशन के लिए हम ब्रेन जिम सेल, हेंटर सेल स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें काफ़ी आप लोगों को खुद भी पता चलेगा कि रिजल्ट्स कितने बेस्ट आ रहे हैं। बागंच कर छिड़काव या था बस अखना HPTS कुल तीर्थराव शुद्धदार मेवा वपदा। अपने मेवा बागात को शानदार और जानदार बनाने के लिए HPTS स्प्रे ऑयल का इस्तेमाल आज ही करें। ज़राई यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंसेक्ट बोर्ड की तरफ से तस्लीम शुदा HPTS ऑयल आपके मेवा बागात को न सिर्फ संजो स्केल और रेड माइट जैसी बीमारियों से बचाता है, बल्कि कश्मीर के मेवा बागात का मुहफ़िज़ HPTS ऑयल 60 साल से कश्मीर के हर फ्रूट ग्रोवर का आजमाया हुआ HPTS ऑयल कश्मीर में सबसे पुराना और आजमाया हुआ ऑयल स्प्रे जिस पर घर घर का भरोसा है। HPTSO वाटर वाइट प्रीमियम ऑयल जो आप सिर्फ 7 लीटर पानी में 1 लीटर HPTS ऑयल इस्तेमाल करके अपने बागों को छिड़काव कर सकते हैं। खरीदने के लिए विजिट करें HPTSO के बाइख्तियार डीलर गौसिया मोटर, शरीफाबाद, मुत्सिल, अंसारी टोयोटा बाईपास, श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कायम करें 7006 258 456 या 7006 436 484।